गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें थियरी शुरुआत करता हूँ। इसकी थियरी जो शुरू हुई है वो हुई है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ये कहता है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट कॉइल। ये फैराडेज लॉ था। इसके बाद लेंज लॉ है जो हमें आइडिया देती है डायरेक्शन। सो लेंज लॉ ये कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस इन सच अ डायरेक्शन टू अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। सो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे फाई का मतलब है फ्लक्स। तो अगर एक कॉइल है एंड इट इज हैविंग एरिया ए, नंबर ऑफ टर्न्स n एंड मैग्नेटिक फील्ड B, then flux linked with that coil is NAB. ये है flux linked with the coil having area A, number of turns n, and B is magnetic field which is perpendicular to the plane of coil. In that case, total flux linked with the coil is NAB. Then इसके बाद है आपका एक थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे ऐड होता है, यानी प्रूफ ऑफ लेंज लॉ। तो प्रूफ ऑफ लेंज लॉ में उस डेरिवेशन में बीच में एक स्टेप है जहाँ पे हम प्रूव करते हैं कि E इज इक्वल टू बी एल वी। सो E इज इक्वल टू बी एल वी। इसके ऊपर भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। मोर प्रिसाइजली इट इज बी एल वी साइन थीटा। ये भी टर्म आपको ऐड करनी पड़ेगी कुछ न्यूमेरिकल्स में। तो E इज इक्वल टू बी एल वी, ये एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा इसी डेरिवेशन में जो हम लेंज लॉ को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। सो E इज इक्वल टू बी एल वी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है अब इसके बाद एडी करंट्स है। तो एडी करंट एक थियोरेटिकल पार्ट है। एडी करंट का मतलब ये होता है कि व्हेन अ मेटालिक ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो सर्कुलेटिंग करंट्स आर इंड्यूस्ड। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑन द सरफेस ऑफ दैट मेटालिक ब्लॉक। तो दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज एडी करंट। So we can say whirlpools of electrons are formed due to change in magnetic field, और इसी को हम कहते हैं एडी करंट। इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, एप्लीकेशंस भी हैं। जस्ट गो थ्रू दिस एप्लीकेशन, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट नो मैथमेटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सो इफ वी हैव अ कॉइल of inductance L and the rate of flow through that coil is L is equal to E is equal to di by dt is rate of change of current through that coil, then EMF induced in that coil is equal to minus L di by dt. Important equation है। Again on this equation you will be asked some numericals। E is equal to minus L di by dt। इसके बाद we have mutual inductance। so mutual inductance भी similar है। E is equal to minus M di by dt। now mutual inductance, that means there are two coils which are placed very close to each other so that the flux of one coil is linked with the flux of linked with the another coil। so due to that the EMF is induced in another coil, that is called as secondary coil, and the current is changing in a primary coil। so this is called as mutual induction, and EMF induced in a secondary coil can be given by minus M di by dt, where di by dt is rate of change of current through the primary coil। next is concept of transformer। before that I will remind you that unit of L and M, coefficient of self inductance and coefficient of mutual inductance, दोनों का यूनिट जो है वो है हेनरी, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर।
So in transformer we have two coils, primary coil and secondary coil. EP is the voltage induced in primary coil, ES is the voltage induced in secondary coil, NP number of turns in primary coil, and S number of turns in secondary coil, IP current through the primary coil, IS current through the secondary coil. इसके प्रूफ में हमने ये देखा है कि ES by EP is equal to NS by NP. ये NS by NP को हम कहते हैं टर्न्स रेशो. अगर NS by NP greater than 1 है तो EMF induced in secondary will be greater than EMF induced in primary, and hence in this case the transformer is called as step up transformer. If number of turns in secondary is less than number of turns in primary, then the EMF induced in secondary will be less than EMF induced in primary. So in that case the transformer is called as step down transformer. This is also equal to, now as the we are assuming here the transformer is ideal. Ideal transformer means there is no power loss. Practically it is not possible, but here we are assuming that there is no power loss. In that case input power is equal to output power, and hence EP IP is equal to ES IS. This is input power, this is output power, and hence I can write EP by ES is equal to IS by IP. So here using this relation I can add one more ratio, and that is IP upon IS. Yes, it is inverse ratio. So यहाँ से आपको एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पूछे जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे करंट इन प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. बट दिस टाइप इज वेरी इजी वन, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट पार्ट इज EMF induced in a coil rotating in a magnetic field with angular speed omega. So EMF induced in a coil can be given by NAB omega sine of omega t. Here omega is the angular velocity of the coil which is rotating in the magnetic field, and number of turns in a coil, A area of the coil, B is magnetic field of the in which the coil is kept, and this is the function sine omega t. This is the EMF induced in a coil. Next question. Now the question on this generally asked, it is asked many times that at which position EMF induced in the coil will be maximum. Here by looking at this equation we can say that when sine omega t is maximum, we can say EMF induced is maximum. So sine will be maximum when omega t is equal to 90 degrees. That means we can say that when the coil is parallel to the magnetic field, in that case only the EMF induced will be maximum. Yes, I am saying parallel because omega t, this is the angle between magnetic field and perpendicular to the coil. तो अगर ये आपका magnetic field है और आपकी कॉइल अगर इस तरह से है, इट इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कॉइल जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ये प्लेन ऑफ द कॉइल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर टू द कॉइल जो रहेगी वो ये रहेगा. सो द एंगल ओमेगा टी इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. तो ये एंगल जब 90 डिग्री रहेगा, इन दैट केस ईएमएफ इंड्यूस विल बी मैक्सिमम, और इसीलिए इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट इज now this AC voltage which we have generated by rotating a coil in a magnetic field. So when you apply this AC voltage across a resistance, तो क्या होगा, इसमें ये होता है कि there is no phase difference between current and voltage. So the equation for current, if E is E naught sine of omega t,
where E naught is NAB omega. So when E is equal to E naught sin of omega t, E naught को हम पीक वोल्टेज भी बोलते हैं. So I current through the resistance can be given by E by R, that is E naught sin of omega t upon R. So E naught by R sin of omega t. So I naught sin omega t. E naught by R को हमने I naught कहा. Again this is your peak current. So this is the value of current which is passing through the resistance when you apply AC voltage across any resistance. Next thing is, when you apply the AC voltage across inductance, तो जब आप एक इंडक्टर के अक्रॉस AC वोल्टेज अप्लाई करते हो, सो तब होता ये है कि इंडक्टर विल नॉट अलाउ रैपिड चेंज इन करंट, यानी करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज. सो इफ इक्वेशन of EMF applied is E naught sin of omega t, then equation of current will be I naught sin of omega t minus pi by 2. Yes, we can say that there is a phase difference of pi by 2. So whenever there is inductor and you are applying AC voltage across inductor, then current lags behind voltage by angle pi by 2. Next, if this EMF we are applying across capacitor, so in that case voltage leads current by angle pi by 2. So if I am writing equation of current as I naught sin omega t, then voltage will be E naught sin of omega t plus pi by 2. So not plus, it is minus, because current is leading voltage, so it is minus pi by 2. So if current is I naught sin omega t, E is equal to E naught sin of omega t minus pi by 2. Remember here in voltage equation I am writing minus, it is because voltage lags behind current by angle pi by 2. So these are some basics which we have seen in inductance and capacitance. There are additional terms that are known as inductive reactance and capacitive reactance. So inductive reactance denoted by symbol XL, which is given by omega L, that is 2 pi f L. And there is a capacitive reactance. So capacitive reactance can be given by XC, which is 1 upon omega C. So 1 upon 2 pi f C. So these are additional terms which we have studied in this topic, XL and XC. Next part is when you apply this AC circuit across a combination of inductor, capacitor and resistance, then तो हमें कुछ इस तरह से एनालिसिस मिलता है जिसमें resistance, inductance and capacitance, they are connected in series. EMF E is applied across them. ER, EL, EC are the potential differences across resistance, inductor or capacitor. So net EMF, by using phasor diagram we can write ER square plus EL minus EC square. So ये यहाँ पे ER की जगह I square R square plus I square XL minus XC, where XL stands for reactance of inductor, XC stands for reactance of capacitor. E square की जगह I square Z square, where Z stands for impedance, total impedance of the circuit, and this is I square. So ये I square cancel होने के बाद हमें मिलता है impedance is equal to root of R square plus XL minus XC square. यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि XL is greater than XC, यानी EL is greater than EC. ऐसा ज़रूरी हर वक्त नहीं है. In some cases EC may be greater than EL, तो यहाँ पे XC minus XL हो जाएगा, बस यही चेंज है, बाकी कुछ नहीं. The phi is the resultant phase difference between current and voltage, and tan phi can be given by XL minus XC upon R. At the same time, cos phi can be given by Z upon R. Next is LC ऑसिलेटर करके एक थ्योरेटिकल पार्ट है आपके इसमें, जिसमें कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं, अगर LC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर आपको आती है, पूछी जाती है आपको, सो इन दैट केस
LC oscillator की frequency and resonant frequency which we are getting in series resonance circuit. तो resonant frequency and LC oscillator की frequency का formula same है, that is ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ LC या फिर F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC. ये है आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर ऑसिलेटर एज वेल एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि देयर इज अ सिचुएशन इन विच द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम. ये तभी पॉसिबल है व्हेन XL is equal to XC, and using that condition we obtain this expression omega is equal to 1 upon root of LC या F is equal to 1 upon 2 pi root of LC. This is about series resonance. For parallel resonance we are using tank circuit, LC parallel tank circuit, जिसमें करंट विल बी मिनिमम. तो जो पैरेलल LC सर्किट है उसमें करंट जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा, और इन दैट केस उस मिनिमम करंट के लिए जो फॉर्मूला है, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, वो भी सेम है. सो देयर इज नो चेंज, ओनली सीरीज में करंट मैक्सिमम रहेगा, पैरेलल में करंट मिनिमम रहेगा. ये चीजें आपको याद रखनी है. पावर of AC circuit. So power of AC circuit can be given by E RMS into I RMS into cos phi. The term cos phi is called as power factor. E RMS is nothing but E naught peak value upon root 2. This is I naught peak value upon root 2 into cos of phi. तो इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं. जरूर नहीं कि हमेशा तीनों एक साथ रहेंगे, कई बार इंडक्टेंस गायब हो जाएगा, कभी कई कैपेसिटर नहीं रहेगा. सो दो कंपोनेंट्स भी रहते हैं, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज ऑल, आई कैन नॉट से ऑल, बट दिस इज ओके सफिशिएंट थ्योरी टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टिल आई विल सजेस्ट टू गो थ्रू कंप्लीट चैप्टर बिफोर सॉल्विंग ऑल द एमसीक्यूज. सो विल स्टार्ट विद द डीपीपी. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डीपीपी का कि एल डी आई बाय डी टी इट इज इक्विवेलेंट टू इन मैकेनिक्स. तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी. सो E का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट का ऑप्शन हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज नथिंग बट वर्क. Now next is second question. Second question ये कह रहा है कि a rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 centimeter square has a resistance of 100 ohm. If magnetic field which is perpendicular to the plane of coil changes at the rate of 1000 Tesla per second, then the current in the coil will be. ठीक. अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 20 है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि फाई इज इक्वल टू NAB, और यहाँ पे पूछा गया है करंट इन द कॉइल. तो पहले हम अगर EMF डिराइव कर ले एंड यू डिवाइड दैट EMF बाय रेजिस्टेंस, यू विल गेट करंट. तो रेजिस्टेंस दिया 100 ओम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट EMF. E इज इक्वल टू d phi by dt. सो d by dt ऑफ NAB, यहाँ पे n और a कांस्टेंट है, इट इज dB by dt. dB by dt का रेट यहाँ पे दिया है, दैट इज 1000 टेस्ला पर सेकंड. सो अब नंबर ऑफ टर्न्स है आपके 20. आपका जो एरिया है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और ये है 10⁻³ 1000 है 10⁻³ सो ये जो आपको आंसर मिलेगा ये मिलेगा 500 इंटू 10⁻⁻50 वोल्ट. ये EMF इंड्यूस्ड है और उन्होंने करंट पूछा है. सो करंट इज इक्वल टू E बाय R. सो E इज 50 एंड योर रेजिस्टेंस इज 100 ओम. 1/2 सॉरी. सो I इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर. सो सेकंड का जो आंसर आ रहा है वो है D. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है द फ्लक्स इन वेबर इन क्रॉस
circuit of resistance 10 ohm varies with the time according to the equation phi is equal to 60 square minus phi t plus 1. The magnitude of induced current at t equal to 0.25 seconds should be. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि E is equal to minus d phi by dt. So d by dt of 6t square minus phi t plus 1. इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलता है ये है 12t माइनस 5. अगर मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दे आर आस्किंग यू करंट एट t इक्वल टू 0.25, तो 12 इंटू 0.25 का मतलब है 1/4 माइनस 5. तो ये आंसर आएगा आपका 3 माइनस 5, ये माइनस 2, दैट इज 2. E इज इक्वल टू 2 वोल्ट और करंट पूछा गया है. सो करंट विल बी, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, सो E बाय R, सो 2 बाय 10, आंसर इज 0.2 एम्पियर. तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 into 10⁻⁻² टेस्ला acts at right angles to a coil of area 100 centimeter square with 50 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt. When it is removed from the field in time t, the value of t is. ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है और मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एरिया दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए, और ये जो कॉइल थी इसको हमने निकाल दिया फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड से निकाल दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और इसको निकालना है कितने टाइम ड्यूरेशन में, वही हमको निकालना है बेसिकली. सो अब देखते हैं E इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम. सो ये टाइम पूछा है उन्होंने और चेंज इन फ्लक्स यानी इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम, जो अपॉन ई रहेगा. ई है उन्होंने दिया, इट इज 0.1 वोल्ट. इनिशियल जो रहेगा दैट इज NAB माइनस ये 0, क्योंकि उसे मैग्नेटिक फील्ड से हमने निकाल दिया है, तो फाइनल जो फ्लक्स रहेगा वो 0 रहेगा, डिवाइड बाय ई. सो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके आ रहे हैं 50 टर्न्स है. आपका जो एरिया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 इंटू 10⁻⁻⁴. आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला डिवाइड बाय 0.1. तो ये जो टाइम ड्यूरेशन अभी मुझे मिलेगा ये हो गया 50 इंटू 200, तो 100 यानी ये और ये गया और ये भी गया. अब ये है 10⁻² अपॉन 0.1, आपको आंसर मिलेगा 10⁻⁻1 यानी 0.1. तो जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है वो है बी, टाइम इज 0.1 सेकंड. फोर्थ का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? A straight conductor of length 0.4 meter is moved with a speed of 7 meter per second perpendicular to magnetic intensity 0.9 Tesla. The induced EMF across the conductor is. ये मैंने पहले ही बता था कि इक्वेशन है छोटा सा, E is equal to BLV. सो इन दिस केस B जो दिया है आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो दिया है वो है 0.9 टेस्ला. लेंथ जो दी है आपकी वो है 0.4 मीटर, एंड जो स्पीड दिया है उसका वो है 7 मीटर पर सेकंड. सो आपका जो ये आंसर रहेगा वो लगभग आ रहा है 2.52 वोल्ट. तो ये ऑप्शन है बी. तो फिफ्थ का आंसर आ रहा है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्ट्रेट कंडक्टर है ऑफ लेंथ 4 मीटर. It is moving with the speed of 10 meter per second when a conductor makes angle of 30 degree with the direction of magnetic induction 0.1 Tesla. The induced EMF is. In this case, induced EMF E can be given by B L V sin theta. So आपका जो induced magnetic field जो है वो है 0.1. Length of the conductor वो है 4 मीटर. Velocity आपकी दी है 10 मीटर पर सेकंड. Sin of 30, so 0.14 10 और ये 1/2. 0.1 इंटू 10 1 हो जाएगा. 4/2 आ जाएगा आंसर 2 वोल्ट. तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन आ रहा है वो है बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. A coil of area 500 cm square having 1000 turns is kept perpendicular to the magnetic field of intensity 4 into 10 raised to minus 5 Tesla. If it is rotated by 180 degrees in 0.1 second, induced EMF produced is. देखो जब भी coil 180 डिग्री से रोटेट होती है तो चेंज इन फ्लक्स इज 2 यानी इनिशियल डबल हो जाता है. Whenever coil is rotated by 180 degree, change in flux is 2 phi. तो phi is initial flux, so 2 into NAB. ये है आपका change in flux. ठीक है. Now next is induced EMF is. तो E is equal to d phi by dt. So ये twice NAB अपॉन जो टाइम दिया है इन्होंने वो टाइम है 0.1 सेकंड. तो 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 1000 एरिया 500 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 4 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻1. अब अगर इसका आंसर ढूंढना जाए तो 7 का जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.04 यानी ये वोल्ट. तो ये 40 मिली वोल्ट ये आंसर आ रहा है. कैलकुलेशंस करके एक बार देख लो, आपका आंसर 40 मिली वोल्ट रहेगा. यानी 7 का जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है वो है बी. यस, इट इज ऑप्शन बी. Next is question number 8. Question number 8 is the average EMF induced in a coil in which the current changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.05 second is 8 volt. The self inductance of the coil is. हमें पता है E is equal to L d I by dt. अब ये EMF induced जो दिया है वो है 8 वोल्ट. ये L हमें निकालना है और di by dt यानी 4-2 ये है चेंज इन करंट 4-2 इन टाइम ड्यूरेशन 0.05. सो आपका जो आंसर आएगा 8 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 2 इज L. सो L इज इक्वल टू ये 0.2 आंसर आ रहा है. 0.2 यानी ऑप्शन है बी. सो 8 का आंसर आ रहा है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज इन LCR circuit the capacitance is changed from C to 4C. For the same resonant frequency inductance should be changed from L to. अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L से. उनका कहना ये है कि उनको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए बट कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो गया है. पहले C था अब वो 4C हो गया है. सो व्हाट शुड बी द न्यू वैल्यू ऑफ इंडक्टर. तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2. सो 1/√L1 C1 इज इक्वल टू, इसको C ही रख देता हूँ, 1/√L2 C2. अब मुझे पता है
ये C1 C2, C1 इज C, C2 इज 4C, L1 इज L, L2 हमें निकालना है। अब इसे ये सीधा सीधा पता चल जाता है कि L1 C1 इज इक्वल टू L2 C2, सो L2 इज इक्वल टू L1 C1 बाय C2, सो L C बाय 4C, सो L बाय 4, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आ रहा है वो है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ इंडक्टर कॉइल इज 6 हेनरी एंड करंट ऑफ 5 एम्पियर इज कट ऑफ इन 2 × 10⁻⁻⁴ सेकंड। यानी चेंज इन करंट सीधा सीधा दे दिया है वो है 5 एम्पियर, 5 से डायरेक्टली वो 0 हो गया, इसलिए चेंज इन करंट इज 5 एम्पियर। कितने समय में? 2 × 10⁻⁴ सेकंड। Induced EMF produced in the secondary coil is induced EMF E is equal to mdi/dt। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 6, चेंज इन करंट मैंने कहा ये 5, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 × 10⁻⁴। सो ये 3 हो जाएगा, 3 × 5 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁴ वोल्ट, ऐसा कुछ है अपने पास। यस इट इज 1.5 10⁻⁵ वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉइल एंड इट इज ऑप्शन सी। 10 का जो आंसर आ रहा है वो है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में in a transformer the coefficient of mutual inductance is 4 Henry, current of 5 ampere in a primary coil is cut off in 1/1500 seconds। सेम कंसेप्ट है, बस टाइम थोड़ा अलग तरीके से दिया है। the EMF at the terminal of secondary coil will be। अब यहाँ पर भी आपको बेसिकली करना वही है कि E इज इक्वल टू mdi/dt। यहाँ पर भी चेंज इन करंट, सबसे पहले देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कितना दिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 4 हेनरी, तो ये आ जाएगा 4। चेंज इन करंट जो है वो है 5 एम्पियर, और ये टाइम है 1/1500 सेकंड, इस प्रकार से। सो 4 × 5 × 1500, तो ये जो आपको आंसर मिलेगा ये 20 × 1500, ये आपको मिलेगा 30,000 वोल्ट, यानी 30 किलो वोल्ट। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज इज 2400 वोल्ट फॉर 120 वोल्ट इनपुट। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 75, द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर। अब देख हमें पता है ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। सेकेंडरी वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज है 2400, सो 2400 अपॉन प्राइमरी यानी इनपुट वोल्टेज है 120 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पूछे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दिए हैं 75, तो बेसिकली ये हो जाएगा 20 × 75 NS। सो NS जो आ रहा है वो आ रहा है 1500 सॉरी, सो NS इज 1500 यानी ऑप्शन बी। 12 का जो आंसर आ रहा है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स एंड इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग हैज 50 टर्न्स। ठीक है, इफ द करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज 40 एम्पियर, द करंट इन प्राइमरी इज। हमने एक रिलेशन इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि IP/IS इज इक्वल टू NS/NP। सो IP is NS/NP into IS। So number of turns in secondary and primary, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न है 200 और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न है 50,
और जो करंट है सेकेंडरी में 40, तो ये लगभग आएगा तो करंट जो मुझे मिल रहा है वो है 10 एम्पियर। सो 13 का जो आंसर है वो है 10। तो ऑप्शन जो है 10 वाला वो है ए। सो 13 का ऑप्शन आ रहा है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर working on 220 volt AC supply is 30%. The ratio of primary to secondary current when output voltage is 110 volt is, ठीक है। पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर वर्किंग ऑन 220 वोल्ट AC और आउटपुट वोल्ट है 110। इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो है 110 एंड प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। सो और हमें पूछा है द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट, ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी का करंट पूछा है। और पावर लॉस बोला है, पावर लॉस है यानी हम ये बोल सकते हैं कि आउटपुट पावर इज 70/100 इनपुट पावर, क्योंकि 30% जो पावर है वो तो लॉस्ट हो रही है, यानी वो कहीं ना किसी कारण वो चली जा रही है, वो 30% पावर हमें मिल नहीं रही है, बची सिर्फ 70% पावर। तो हम ये कह सकते हैं कि पी आउट इज इक्वल टू 70/100 पी इन। तो पावर आउट का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट, 70/100 प्राइमरी करंट इंटू प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट। उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट, तो ES by EP into 100/70 is equal to IP upon IS. ES by EP 110 upon 220 into 10/7 IP by IS। तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये 5/7 IP by IS हमें मिल रहा है। IP by IS 5/7 यानी ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन है डी। 14 का आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अ जनरेटर produces an EMF of 240 sine of 120t where t is in second। the frequency and RMS voltage are, तो यहाँ पे थोड़ी टर्म्स गड़बड़ हो गई है बट ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा लगेंगे, अगर जजमेंट बराबर है तो आप आराम से कर सकते हो। सो E इज 240 साइन ऑफ 120t। तो इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से, तो पीक वोल्टेज जो है वो है 240 वोल्ट, ये है पीक वोल्टेज। और फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इज 120, तो ये 2 पाई एफ इज इक्वल टू 120। सो f इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 पाई, ये 60 अपॉन पाई, यानी ये जो आंसर आएगा करीब करीब 19 हर्ट्ज के आसपास आपको आंसर मिलेगा। ये जो रहेगी ये वैल्यू वो रहेगी 19 हर्ट्ज के आसपास। फ्रीक्वेंसी होगी, आरएमएस वोल्टेज पूछा है, सो आरएमएस वोल्टेज ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट 2, सो 240 अपॉन रूट 2, सो ये 2 इंटू 120 अपॉन रूट 2, यानी ये रूट 2 इंटू 120 आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज अराउंड 170 वोल्ट। सो 19 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 170 वोल्ट, तो आपको जो ऑप्शन मिल रहा है 15 का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू 400 साइन ऑफ 500 पाई टी इज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस 0.2 किलो ओम। RMS वैल्यू ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू, ठीक है। सो सबसे पहले
RMS current is equal to resistance 0.2 kilo. So E RMS upon R. E RMS यानी E नॉट बाय रूट टू. सो E नॉट बाय रूट टू और ये R 400 अपॉन रूट टू और रेजिस्टेंस जो है आपका वो है 0.2 किलो ओम. 0.2 किलो मैंने 200 ओम. सो ये हो जाएगा 200. सो ये 2 बाय रूट टू, ये रूट टू, ये 1.414. तो आरएमएस करंट जो आपको मिल रहा है वो है ऑप्शन बी. 16 का आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 है the instantaneous value of current and voltage in AC circuit are respectively I is equal to 4 sin omega t and E is equal to 100 cos of omega t plus pi by 3. The phase difference between voltage and current is, ठीक है, I is 4 sin of omega t and voltage जो दिया है वो है 100 cos of ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3. मैं 100 इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, क्योंकि कॉस को मैंने रिप्लेस किया कॉस थीटा को साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 से. तो अब ये मुझे मिलता है 100 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और ये आएगा 5 पाई बाय 6. तो ये जो फेज डिफरेंस है अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ यानी करंट का भी साइन है यहाँ पर भी साइन है, ठीक है. सो ये ओमेगा टी है और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6 है. तो इसका मतलब जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा 5 पाई बाय 6. 5 पाई बाय 6 यानी ऑप्शन है आपका सी. 17 का आंसर आ रहा है सी. Next is question number 18. So question number 18 में in LCR circuit alternating EMF E and current are given by equation 100t and 100 pi by 3. The average power dissipated in the circuit will be. The average power के लिए जो हमारे पास average power के लिए जो expression है वो है E RMS into I RMS into power factor. तो यहाँ पे जो फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, साइन साइन है. तो सिर्फ पाई बाई 3 का फेज डिफरेंस है. तो ई आर एम एस अब यहाँ पे 100 अपॉन रूट टू, करंट जो है उसकी भी पीक वैल्यू 100 है अपॉन रूट टू कॉस ऑफ पाई बाय 3. तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 2 और ये 1/2, ये 50 इंटू 50. आपका जो आंसर यहाँ पे मिलेगा. अच्छा इसमें एक गड़बड़ हो गई. गड़बड़ ये है आई आर एम एस करंट इज इन मिली एम्पियर. सो यू मस्ट मल्टीप्लाई हियर बाय 10⁻³ सो ये हो जाएगा 2.5 वैट्स. तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है 18 का वो है डी. ये गड़बड़ होती है कई बार, इसमें थोड़ी प्रिकॉशन रखना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 है इन AC resistance AC circuit resistance inductance capacitance are connected in series. The value of potential difference across 3 are 70 90 65. The value of potential difference of AC source is. इसमें हमने देखा था कि AC सोर्स का जो पोटेंशियल रहता है वो रहता है ER प्लस EL माइनस EC. मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं हमेशा EL माइनस EC रहे, कभी कभी वो EC माइनस EL भी रह सकता है डिपेंडिंग ऑन गिवन डाटा. यहाँ पे EL इज ग्रेटर देन EC. सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वैल्यू पोटेंशियल अक्रॉस 3R रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, ठीक है. तो ER इज 70, EL इज 90 और ये है माइनस 65. तो ये जो आंसर आ रहा है आपका ये है 70 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई.
सो 70 स्क्वायर प्लस 90 माइनस 65 ये 25 स्क्वायर, इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा और इसका आंसर दिया है 74.3 वोल्ट, यानी ऑप्शन है डी। क्वेश्चन 19 का जो आंसर आ रहा है वो है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडक्टर 0.5 हेनरी का है, कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। रिएक्टेंस हमें पता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा XL व्हिच इज ओमेगा L इनटू पाई एफ एल। सो ये फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, सो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो है 0.5 यानी 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 50 इंटू 3.147 जो है इसका आंसर आपको मिलेगा 157 ओम। मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जजमेंट से बता सकते हो कि 15 3 150, तो आंसर विल बी डेफिनेटली 157, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। तो 20 का जो आंसर आ रहा है, 20 का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, नेक्स्ट इज 21। इन एलसी सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाज फाउंड टू बी 20 ओम। ठीक है, द प्रोबेबल इंपेडेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ 21 की, सो XL इक्वल टू XC इज 20। हमें पता है कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो जो कॉम्बिनेशन में इम्पेडेंस रहेगा दैट विल बी XL माइनस XC। तो XL माइनस XC, तो ये जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0 ओम, क्योंकि 20 माइनस 20 आंसर रहेगा 0। तो इसका आंसर है ए, 21 का आंसर है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में an inductance of 100 millihenry and resistance of 100 ohm are connected in series and alternating EMF of peak value 100 volt 50 hertz is applied across the combination. The power factor of the circuit is। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशंस ज्यादा लगेंगे आपको कि पावर फैक्टर यानी cos of phi, cos of phi r upon z। r upon z का मतलब है इट इज r स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, XL है 2 पाई f, सो ये r अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल स्क्वायर। इतना सब करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑप्शंस देखो, आप ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा आंसर है। कॉस की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, और ये तीनों ऑप्शन में चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। सो 22 का आंसर सीधा सीधा आप लिख सकते हो ए, इट इज 0.9540, और कोई भी आंसर इसमें पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए इस तरह के कैलकुलेशन में आपका टाइम बहुत जाएगा और आपके बाकी इजी क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। सो ऐसे कोई कैलकुलेशंस ना करें, आप थोड़ा पहले सोचो कि कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है या नहीं, नहीं है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि 100 वैट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंजम्पशन वुड बी। ठीक है, पहले तो हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि पावर इज v स्क्वायर अपॉन r, सो r इज v स्क्वायर अपॉन p। तो इनिशियल जो रेटिंग दी है उस बल्ब की, उससे उसका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो इनिशियल रेटिंग के हिसाब से v स्क्वायर है 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय पावर इज 100, सो ये आ जाएगा 400
ओम का रेजिस्टेंस, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो है 400। जब आप इसको कनेक्ट करोगे 160 वोल्ट सप्लाई से, सो पावर विल बी, पावर इज अगेन v स्क्वायर बाय r, सो 160 इंटू 160 अपॉन 400, ये दोनों जीरो गए, आपका आंसर आएगा 64 वैट। 64 वैट यानी ऑप्शन है ए। सो 23 का आंसर आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 इज in an AC circuit the current flowing is 5 sin 100t minus pi by 2 and potential difference is 200 sin of 100t. द पावर कंजम्पशन इज, यहाँ पे सीधा सीधा प्रोसेस जाता है कि करंट एंड वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का। पावर इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव, फाइव है पाई बाय 2, कॉस ऑफ पाई बाय 2 जीरो है, पावर कंजम्पशन आपका जीरो रहेगा, और इसलिए 24 का जो आंसर है वो है 0 वैट, यानी ऑप्शन डी। Next is question number 25. Question number 25 है in an AC circuit E is equal to 220 sin of 100t is voltage applied if the impedance is 110 ohm and the phase difference between current and voltage 60 degrees, the power consumption is equal to। power consumption के लिए यहाँ पे ध्यान दो, अभी करंट दिया नहीं है, अगर करंट नहीं दिया तो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इम्पेडेंस दिया है 110 हो, सो P इज इक्वल टू ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड कॉस फाइव, ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड कॉस फाइव। बेसिकली ये आया कहाँ से हमें पता है, इट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब ई आर एम एस और आई आर एम एस की जगह ई आर एम एस अपॉन जेड में लिख देता हूँ कॉस फाइव, तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा ई आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन 2 अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव। अब ई स्क्वायर आर एम एस, तो स्क्वायर होने के सब यहाँ पे जो ई दिया 220, सो 220 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर अपॉन इम्पेडेंस जो है वो है 110 एंड जो फेज डिफरेंस है वो है 60 डिग्री यानी कॉस ऑफ 60। तो ये 220 इंटू 220 अपॉन 110 इंटू 2 इंटू 1/2, तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वो है 110 वैट, 110 वैट यानी ऑप्शन सी। 25 का आंसर आ रहा है सी।